Hello friends, welcome to this ProTalent IAS Academy's Economics Survey 2017-18 discussion. Here we are talking about Volume 2, Chapter number 2. So this is Volume 2, Chapter 2, talks about Review of Fiscal Developments. Here we have to understand that how the fiscal situation of India is presented. So here, let's take an overview. Sound public financial management is one of the biggest pillar of India's macroeconomic stability in the last 3 years is what the comment being made in this economic survey. So we have to understand what does this mean. So to understand this, we have to understand in a broader perspective how things are being provided. So for example, we all understand that the money comes in and the kind of expenses we are making is the game. So ये पूरे चैप्टर के अंदर हम सिर्फ ये बात करेंगे कि भैया रेवेन्यू कैसे आया, दैट इज द काइंड ऑफ रिसीट व्हाट वी गॉट एंड द एक्सपेंडिचर रिलेटेड पार्ट. और अगर कोई कारण से एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ठीक है, तो क्या क्या जगह पे ये एक्सपेंडिचर जा रहा है, ठीक है. हम अगर उस एक्सपेंडिचर का नेचर पकड़ेंगे, then we will be in a position to understand whether the India is doing proper macroeconomic stability management or not. That's number one. Number two, we will also see the components of receipts. That is what we need to understand. ठीक है कि भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और उसका जो डेवलपमेंट है किस तरीके से हो रहा है. So these two things we need to worry. सबसे पहली चीज क्या वरी करने की है, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो रहा है, वो एक्सपेंडिचर किस जगह पे हो रहा है, whether that expenditure is happening for a future development or it is only, we can say that expense is going on to repay certain things. तो वो हम बात करेंगे. हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, whether it is going to continue for a long run or not, ये बात करेंगे. And we all understand that India is a developing country, तो हमारा बजट कैसे चलता है, फिस्कल डेफिसिट में. That means expense are more and earnings are less. So ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो कैसे फाइनेंस हो रहा है और वो अमाउंट आज की तारीख में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना बढ़ चुका है, ये बात हम करेंगे. और ये जो कमेंट है दैट इज पिछले 3 सालों में ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है उसके डेटा से समझेंगे कि वो स्टेबिलिटी कैसे आई है. सो लेट अस अंडरस्टैंड एग्जैक्टली सरकार क्या प्लान करके चल रही है. उन्होंने बोला दिस इज बेस्ड ऑन दिस फर्म फुटिंग गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स हैज assured in a long term, we can say, scenario which is basically called GST, which has been also long awaited. तो ये लॉन्ग टर्म प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू गो फॉर GST. अब GST अकेले अकेले सेंटर करना चाहेगा वो नहीं होगा. So GST has to be supported through all states. So here this is in partnership, which is popularly known as cooperative federalism. Government is navigating the change and the challenges, including the possibility of substantial portion of last month GST collection may spill over to the next year. So GST collection may possibly go to the next year and that the income may not be counted for this particular year. Meanwhile, direct tax collections are expected to meet the targets and spending plans are broadly, you can say, on the track. So this is what government is saying. Let's see this by certain data. सबसे पहली चीज ये है आपके सामने ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू. ठीक है, ये देखिए भैया, ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है दैट इज इंक्रीजिंग. ओके, दैट इज ऑन अ इंक्रीजिंग ट्रेंड. सो टैक्स आर इंक्रीजिंग, पॉजिटिव थिंग. ओके, सो दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड, नंबर 1. ठीक है, देन यू हैव अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दिस पार्ट which is going down. So revenue expenditure is going down. That's also positive factor. Then you have a capital expenditure. Capital expenditure is slowly increasing. Capital expenditure is slowly increasing. Now remember, having a capital expenditure increment, okay, that's very critical. Why? For example, let's say you are having your own household, okay,
आप जो भी कमा रहे हैं उस कमाई में से यू आर स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन योर डे टू डे एक्सपेंसेस, लाइक आप उसको खाने में लगा रहे हैं, कपड़ों में लगा रहे हैं, ट्रैवलिंग में लगा रहे हैं, टूरिज्म में लगा रहे हैं. सो दोज काइंड ऑफ एक्सपेंसेस यू आर मेकिंग. Let's say out of that earning, if you put substantial amount of money for capital expenditure, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में अर्निंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू पुट दैट मनी इन, लेट्स से हाउस, और यू परचेज पॉसिबली अ शॉप, जहां से फ्यूचर में रेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, आप अर्निंग कर सकते हो. दैट्स अ पॉजिटिव थिंग. सो ये इंडिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीमेंट होना पॉजिटिव और बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं है. ठीक है. एंड देन द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डिवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड टैक्स डिवोल्यूशन टू द स्टेट्स. अब ये जो टैक्स डिवोल्यूशन है वो अचानक बढ़ गया. सो टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब है इट इज अ काइंड ऑफ, यू कैन से, रिक्वायरमेंट बाय द सेंटर टू गिव दैट मच मनी टू द स्टेट आउट ऑफ द काइंड ऑफ टैक्स दे कलेक्टेड. तो ज्यादा पार्ट इनको स्टेट को देना बनता है. स्टेट विल डिसाइड इन पैसों का करना क्या है. ठीक है. तो एक तरीके से फेडरलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है. ठीक है. ये बहुत जरूरी है. पर सामने सरकार के जो नेट इनकम है सेंटर की, वो कम हो जाती है. बट एनीवे, सो ये अपना ट्रेंड है, ये अपना ट्रेंड है. फर्दर लुक एट दिस. सो दिस इज ऑरेंज पार्ट. ठीक है. This orange part is called revenue deficit. ठीक है. Revenue deficit. Now revenue deficit is going down. Okay. Similarly, fiscal deficit is going down. ठीक है. While you can say this primary deficit is also going down. Now this is presented as a percentage of GDP, which means जो भी हमारा fiscal deficit है divided by GDP का नंबर है ये. ओके. अगर मानो ये जीडीपी बढ़ गया तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब जो परसेंटेज वाला पार्ट है उसका जो डिक्रीज होना है वो बिल्कुल डिक्रीज होगा. सो ध्यान रहे, भारत में फिस्कल डेफिसिट डिक्रीज होना इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग. बट सामने इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जीडीपी. अगर जीडीपी बढ़ गया है तो ये फिस्कल डेफिसिट भले बढ़ भी गया होगा कंट्री का, फिर भी वो दिखता क्या है, परसेंटेज टर्म्स में कम दिखता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट बेसिकली द फिगर्स. दिस आर आल्सो पॉजिटिव फिगर्स. दिस आर आल्सो पॉजिटिव फिगर, दे आर डिक्रीजिंग. ओके. मूविंग फर्दर, दिस इज कॉल्ड आवर इंटरेस्ट पेमेंट. है ना. ध्यान रहे, ये हमारा इंटरेस्ट पेमेंट का कैलकुलेशन है और ये हमारा सब्सिडीज का कैलकुलेशन है. ठीक है. सो ये हमारी सब्सिडीज है. ध्यान रहे, इंटरेस्ट पेमेंट हैज रिमेन स्टैग्नेंट, विच मीन्स हमारा जो खर्चा है, ठीक है, हमारा जो इनकम में से सब्सटेंशियल पार्ट इज गोइंग फॉर इंटरेस्ट पेमेंट एंड दैट हैज रिमेन अ स्टैग्नेंट नंबर, विच इज रीजनेबली अ बैड आइडिया. हम जो भी कमा रहे हैं उसमें से काफी ज्यादा पैसा हमारा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है. ठीक है. सो देयरफॉर दिस इज अ बैड आइडिया. सेम इज द केस, अगर आप ये देखें, सब्सिडीज हैव सब्सटेंशियली डिक्रीज, नाउ इट इज फर्दर इंक्रीजिंग इन अ स्लाइट मैनर. बट यू कैन से सब्सिडीज का भी एक बड़ा पोर्शन रहना हमारे एक्सपेंस में, दैट्स ऑल्सो बिग इश्यू. अब इसकी वजह से होता क्या है, द रेवेन्यू विच वी रिसीव्ड आउट ऑफ विच सब्सटेंशियल पोर्शन इज बीइंग एक्सपेंस्ड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, तो ये हो रहा है. अब उसकी वजह से सरकार के पास बहुत कम पैसा बचता है कि जो कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी पे लगा सके, कोई बड़े एक्टिविटी कर सके, कोई रिस्क ले सके, कोई इनोवेटिव एक्टिविटी कर सके. सो सरकार के पास वो चीज का संभावना कम हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज वेयर द फिस्कल पॉसिबिलिटीज आर कमिंग अप फॉर अस. सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, let's understand few terminologies which are very critical to understand this particular chapter. So terminologies are this. Which are the terminologies? One is fiscal deficit. So what is this fiscal deficit? It occurs when a government's total expenditure exceeds the total revenue, that is excluding the money borrowing. So we forget about money borrowing. ठीक है. We just talk about total expenditure minus total revenue. अगर total expenditure is more than total revenue for a given year, then it is called fiscal deficit. Okay. So that is called fiscal deficit.
ठीक है। नंबर 2 प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दीजिए, तो वहां से ये पता चलेगा कि हमारे रेवेन्यू में से अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर दे, हमारे ही खर्चे, ठीक है, एक्सपेंस के सामने रेवेन्यू हमारा जो आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है। फॉरगेट अबाउट इंटरेस्ट, सो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट, दैट गिव्स गुड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कि हम जो जितना कमाई कर रहे हैं उसमें से हम खर्चा कितना करते हैं और कितना ज्यादा खर्चा करते हैं। देन वी हैव अ रेवेन्यू डेफिसिट which is called excess of total revenue expenditure over total revenue receipts। अब ये revenue expense का मतलब क्या और capital expense का मतलब क्या? हम बात करें revenue expenditure और बात करें capital expenditure, उनका मतलब क्या? भाई revenue expenditure का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट डे टू डे एक्टिविटी में to run the operations of government has to do expense of salaries, पेंशन, डिफेंस, है ना, इंटरेस्ट पेमेंट करना, ये सब चीज जो डे टू डे एक्टिविटी का खर्चा है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? द एक्सपेंसेस आर डन टू क्रिएट एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग और रोड्स। सो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट योर हाउस होल्ड, आपके हाउस होल्ड में जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वो क्या है? आप किराना का सामान लेकर आए, जो इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया आपने, अगर मानो आप रेंट के घर पे रह रहे हैं तो आपने रेंट का पेमेंट किया, सो ऑल दोस थिंग्स आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर वुड बी possibly you have purchased a house, possibly you have purchased basically a shop, possibly you have purchased a vehicle जो आपको अगले 10 साल तक आपको बेनिफिट देगा, है ना। सो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू डेफिसिट मतलब सरकार जो इस साल रेवेन्यू का पैसा कमा रही है वो, विच मीन सरकार ने जो लोन ली है वो नहीं आएगा। कैपिटल अगेन से रिसिट इज कमिंग अंडर एज अ लोन, ठीक है, तो लोन ली वो नहीं आएगा, जो उसी साल के लिए जो पैसा कमाया, सो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिट एंड उसके सामने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू deficit. What is capital expenditure? Primarily to create assets like land, building, road, उसको डेवलप करने के लिए सरकार ने जो भी खर्चा किया, that is called capital expenditure. What is revenue expenditure? To run day-to-day operations of the government, like salaries, pension, defense, interest payment, all these things will come under revenue expenditure. So these are the kind of terms related to this. One important term आई एम श्योर इस बार यूपीएससी में प्रीलिम के एग्जाम में पूछने का भरपूर सवाल इज दिस कॉल्ड टैक्स डिवोल्यूशन टू द स्टेट्स। क्या है ये? भाई डिवोल्यूशन इज अ स्टैट्यूटरी डेलीगेशन ऑफ पावर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ सोवरेन स्टेट टू गवर्न एट अ सब नेशनल लेवल सच एज रीजनल और लोकल लेवल इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। कि भैया ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी डेलीगेशन ऑफ पावर इन द सेंस सेंटर ने स्टेट को बोला कि आप ये एक्टिविटीज आपको करनी है, हेल्थ आपका काम है, ठीक है, एजुकेशन आपका काम है, आप उसके ऊपर एक से अपनी एक्टिविटी लगाए, विच इज कॉल्ड डिवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड डिवोल्यूशन टू द स्टेट। उसमें जो सेंटर ने जो टैक्स कलेक्ट किया उसमें से कुछ पार्ट they will be giving to the state, that's called tax devolution to the state. Remember, ठीक है, it is a form of administrative decentralization, while the devolved territory, that is state, will have power to make legislation relevant to that area. Health related या education related उनके हाथ में भरपूर पावर हो गए, वो अपनी मन मर्जी से जो लॉ बनाना चाहे बना सकते हैं. So these are the kind of terminologies available to this. Okay, so let's move further and talk about one more table, one more graph to talk about this. ठीक है, so look at this, है ना भाई. इंडिया में हमारे पास किस तरीके का कैलकुलेशन है भाई? टोटल रिसीट है which is excluding borrowing, that is given in a dark red color. in ऑरेंज कलर में ये आपको देके रखा है टोटल एक्सपेंडिचर. सो आप देखेंगे भारत में हर साल there is a deficit, there is a deficit. Okay, these are the deficits which are coming. These are in a long run creating trouble. ठीक है, and look at the figures. These are roughly to the tune of some around 5 lakh crore, to the tune of some around 5 to 6 lakh crore, to the tune of 5 to 6 lakh crore. So on an average, total expenditure, total receipt में हमेशा there is a shortfall. Remember, this shortfall is always a bad idea. That's always a
बैड आइडिया। लुक एट दिस, ठीक है भाई, हमारे ये जो डेफिसिट हो रहा है उसमें कुछ अच्छे मतलब जानकारी मिल रही है। क्या जानकारी मिल रही है? सबसे पहली चीज, हमारी जो रिसीट्स है, दैट इज टोटल रिसीट, जो 2014 के सामने 2018 के सामने हम बात करें, इट हैज बीन इंक्रीज, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और उसके सामने जो हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली हैज इंक्रीज, बट द रेट ऑफ इंक्रीमेंट is quite less than the receipt. If you compare between this, that is quite, you can say, manageable. So that is really a good idea. Look at the borrowing. Borrowing has just increased by 16%. So that's also very positive thing. Okay. So that is, मतलब positive thing का मतलब है कि एक fiscal consolidation के नजरिए से ध्यान रहे, ठीक है, अभी तक हम मतलब हमारा जो फिस्कल डेवलपमेंट हो रहा था वो बर्बाद जा रहा था, अब उसको धीरे धीरे हमने कंट्रोल करने की कोशिश करी है, इस कारण से ये पॉजिटिव है। अदरवाइज एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा होना वो तो गलत बात है ही है, पर इतने सालों से बुरी हालत चल रही थी और अभी हालत अच्छी हो रही है, दैट्स बेसिकली द आइडिया एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब हमारे जो एक्सपेंसेस है ना, हमारे जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादातर कहाँ जाते हैं? टोटल अगर हम बात करें इंटरेस्ट पेमेंट, है ना, आप देखिए हमारा जो एक्सपेंडिचर है 15.9 था, उसका 3.8 पार्ट है ना, इट गोज टू इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन में 0.7 और ये 2.5। आउट ऑफ 15.9, दैट इज रफली आउट ऑफ 16, 7 पार्ट्स, दैट इज सम अराउंड 40 to 50% मनी गोज फॉर रिकरिंग, यू कैन से खर्चे, ठीक है, रिकरिंग एक्टिविटी पे जा रहा है। सेम इज द केस 9.1 out of, you can say, this total 22.1, roughly 50% that is going for this recurring activity, which is a bad idea, है ना। अगर सरकार कोई कारण से ये पेंशन या सब्सिडी रिलेटेड चीजें कम कर पाएगी, कोई कारण से सरकार इसको कम कर पाएगी, then सरकार will have a reasonable flexibility to move further and to do certain innovative and developmental activities. So that is a really important thing. Another thing, हमारा जो टोटल आउटस्टैंडिंग बजट था विच इज इन 56.7 लाख करोड़ रुपीस का था, विच हैज इंक्रीज टू 82.3, यू कैन से, लाख करोड़, ठीक है। सो दैट इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 45%। सो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो टू मैनेज दिस, इसको लंबा समय जाना पड़ेगा इसको मैनेज करने के लिए। और हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है, इट हैज बीन ग्रोइंग by only 48%. So this is very concerning area. This is also concerning area क्योंकि हमारे जो इनकम है उसमें से बहुत ज्यादा पैसा हमारे रिकरिंग जो रेगुलर एक्टिविटी है उतना तो खर्चा करना ही है, ऐसे करके जा रहा है, तो इसलिए सरकार के पास कोई लीवे मिल नहीं रहा है कोई नई चीज करने का। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। सो लेट्स मूव फर्दर, हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। भाई रिसीट्स के बारे में हम बात करें, भाई हमने बात करी रिसीट्स एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। क्या 3 बड़े पैटर्न? ग्रॉस टैक्स कलेक्शंस आर रिजनेबली ऑन अ ट्रैक, नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैव विजिबली अंडर परफॉर्म, ठीक है, एंड थर्ड, नॉन डेट कैपिटल रिसीट विच इज मेनली प्रोसीड्स फॉर डिसइन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो डूइंग वेल। सो डिसइन्वेस्टमेंट भैया ध्यान रहे उसके ऊपर लंबा टिक नहीं सकते हैं, जो टिकने की बात है वो सिर्फ ये एरिया है, दैट इज ग्रॉस टैक्स कलेक्शन एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू एंड नेट टैक्स रेवेन्यू इज मेनली बिकॉज ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन। कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट में देना है। द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द टैक्सेस grew by 25.2% during this April to November, which much higher than the growth of net tax revenue. While disinvestment proceeds, non-tax revenues have shown contrasting growth pattern. So उसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ नहीं है। So growth in direct tax collection of the center has kept pace with the previous year. That's a positive figure. तो आपके सामने फटाफट ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए। भाई ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू क्या है? सो ये ओवरऑल ये धीरे धीरे बढ़ा है। नेट टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, विच इज टू द सेंटर इज दिस, क्योंकि इसमें से डिवोल्यूशन हुआ है, सेंटर ने स्टेट को पैसा दे दिया है, सो ये नेट पैसा आया है। रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड, ठीक है। नॉन डेट रिसीट हैज नॉट इंक्रीज इन अ प्रॉपर मैनर, सो दिस इज हाउ दिस सिनेरियो इज डेवलप, ठीक है। सो मूविंग फर्दर, you can say growth अगर हम बात करें, so these are the kind of growth which has taken place. Gross tax revenue increased
increased, है ना, and then it is decreased, ठीक है, and उसी के सामने non tax revenue are going in this particular way. So these are the kind of scenario which are happening. Moving further to talk about expenditure. Expenditure के बारे में सरकार क्या बोल रही है, ठीक है, बोला central government expenditure has progressed at a robust level. One of the major fiscal reform in the current year was advancing the budget cycle. उन्होंने बोला कि हमने क्या किया, बजट का एडवांसमेंट कर दिया, एक महीने पहले उसको कर दिया. So this gave a considerable leeway to the spending agencies like ministries to plan their expenses in early and move further, ठीक है. So expenditure trend in the current year at any midpoint, ठीक है, so they are basically you can say positive result आया है. ये देखिए भैया, total expenditure has been increasing at this particular part. 11.42 lakh करोड़ था, उसका 14.79 करोड़ हो गया. Revenue expenditure has also increased. Capital expenditure has increased to a slight pace. This is the area where government has to look for, ठीक है. So total expenditure का ये जो हमने नंबर देखा as a percentage, that is how the percentage increment is going on. Capital expenditure is the area where government has to look forward to. And look at the deficit part. Revenue deficit is you can say 4.9 lakh करोड़ और उसके सामने fiscal deficit is 6.12 lakh करोड़, ठीक है. Now that is for that year. अब आप उसको cumulative ऐड करोगे तो भारत के लिए सिनारियो काफी बुरा बन रहा है. So भाई क्या हुआ था पिछले कुछ समय में, states targeted, ठीक है, to consolidate in the current year because उनके ऊपर उदय, that is Ujjwal Discom. After this Ujjwal Discom assurance yojana, that has created certain trouble to the state because state had to take out so much of money, ठीक है. Now after that aberration, this says the states have balanced themselves. So Uday bonds had an impact of 0.5 to 0.6% on GDP, and the deficit on 26 states under consideration is there, ठीक है. भाई सेंटर पे 0.5 का और स्टेट में 0.6 का इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है. सो ये था भैया कैन से स्टेट के ऊपर. अब हम ये देखते हैं भाई इंटरेस्ट पेमेंट में क्या हुआ. अभी हमने देखा था भाई इंटरेस्ट पेमेंट इज अ रेगुलर फीचर, ठीक है. भाई ऑन एन एवरेज 55 से 60 लाख करोड़ इज टू बी स्पेंड ऑन दिस इंटरेस्ट पेमेंट. वाइल सब्सिडीज की अगर आप बात करो तो सब्सिडीज के खर्चे, है ना, हैज रिमेन इन अ रीजनेबल मैनर, एंड सैलरीज एंड पेंशन के भी खर्चे आप देखें. सो दिस आर द रिकरिंग खर्चे, और ये रिकरिंग खर्चों की वजह से सरकार को दिक्कतें पड़ रही है. तो ये आपको समझ आना जरूरी है इस फिस्कल से डेवलपमेंट के ऊपर बात करने के लिए. ओवरऑल अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, 2016-17 के बाद इट हैज बीन रिड्यूस. सो फिस्कल डेफिसिट एक तरीके से रिड्यूस हो रहा है, दैट्स अ पॉजिटिव फिगर, ठीक है. तो ये डिक्रीज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. ध्यान रहे, दिस इज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट अमाउंट, ओके, ठीक है. नाउ रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ स्टेट्स अप्रैल नवंबर में क्या रहा, ठीक है. सो भाई क्या ग्रोथ रहा, 16-17 का ये नंबर था, है ना, 17-18 का ये इंप्रूवमेंट रहा था, ठीक है. और जो एक रिवाइज एस्टिमेट के एंगल से देखे, सो दैट्स आल्सो अ गुड इंप्रूवमेंट, बट दैट इंप्रूवमेंट इज नॉट अ वेरी यू कैन से पॉजिटिव फिगर. इट जस्ट टेल्स अ कंसोलिडेशन इज हैपनिंग इन फिस्कल पार्ट. Deficit of states during April-November as a percentage of you can say this business estimate, उस एंगल से देखे तो फिस्कल डेफिसिट के एंगल से देखे तो भैया इतना मतलब डिफरेंस रहा, एंड दिस इज रेवेन्यू डेफिसिट is decrease. That's a very you can say positive figure. So if we talk about salient measures undertaken for indirect taxes, so I'm sure we all understand that indirect taxes with GST, lot of changes have you can say taken place. So what are the important changes? Number one, custom duty, primarily to incentivize Make in India. That's a very good idea because custom duty was reduced for input on raw material. Basic custom duty was increased on certain specified items like you can say for example mobile phones or TVs, उसके ऊपर बढ़ाया गया था. Basic custom duties was increased also on a crude and refined palm oil, उसके ऊपर उन्होंने काम किया था. Talking about rollout, it's a historical tax reform as being provided you can say by government called 1st July 2017 से आया था. GST has significantly raised turnover threshold of rupees 20 lakh. 20 लाख के ऊपर है तो ही वो एंटिटी जीएसटी में आएगी, ठीक है. एंड थ्रेशोल्ड फॉर कंपोजिशन वाज इंक्रीज्ड यू कैन से इन जनरल टू 1 करोड़. सो दैट वे इट इज वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव सिनेरियो. फर्दर थिंग is there are salient measures related to direct taxes.
Number one, lowering tax rate on domestic companies. ठीक है, that is what they did it. So a company which is having annual turnover which is less than 250 करोड़, ठीक है, उनका 30% से 25% रिड्यूस कर दिया, which is very good idea. Lowering of tax rate on individual between the income group of 2.5 lakh to 5 lakh, ठीक है, के बीच में 5%, 10% था, उसकी जगह पे उसको 5% कर दिया है. Levying on surcharge at 10% on individual, ठीक है, with income between 50 lakh to 1 crore. मतलब डायरेक्ट टैक्सेस में भी उन्होंने काफी ज्यादा बेनिफिट करे हैं. And further on this is period of holding a computation of long-term capital gain has been reduced from, you can say, 36 months to 24 months. So primarily housing sector के लिए काफी बड़ा benefit बनेगा, ठीक है. Base year for fair market value and cost in inflation index has been shifted from 81 to 2001. So to get a proper understanding ki how this, you can say, latest changes are happening. And period of claim of profit link deduction of by eligible startup has been increased from 3 out of 5 years to 3 out of 7 years, and conditions for carry forward of loss for such startup in case of change in shareholding also decreased. So these are the kind of changes have taken place in direct taxes. Coming to next part is called policy initiative on investment management is also very important. The thrust of government is to, the focus is on efficient management of the investment of, you can say, central sponsored public sector unit. प्राइमरली फोकस ये था कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो उनका और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज डेवलप करी जाए, और इस लाइन में उन्होंने 14 से सीपीएसईज को एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट करने का प्लान करा है, ठीक है भाई. लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 4 बड़े आईपीओ आए थे, हुडको, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस का आया था, ठीक है. एट द सेम टाइम पोस्ट लिस्टिंग while the disinvestment of government shareholding took place through minority shares, ठीक है. But the focus of this strategic disinvestment is on the adopting of pragmatic approach for the government to exit from this kind of non-strategic business to optimize their economic potential. ये बिल्कुल जरूरी है. जिस जगह पे strategic interest नहीं है सरकार का, उनको वहां से निकलना बिल्कुल बनता है, and this is how they are targeting to go. So this is how the fiscal development has taken place in this year for the government part. So यहाँ पे समझना ये था that government has ensured that there has been a stability in terms of, you can say, fiscal development, and more importantly एक fiscal consolidation का सिनारियो भारत के लिए डेवलप हो चुका है, and इससे आगे की जो गवर्नमेंट है और आगे के जो बजट के प्लान है उनको काफी मदद मिलेगा. So that way this is how the chapter number 2 for fiscal development. We thank you very much for watching this, and do not forget to subscribe our channel and continue watching this economic survey. Thank you.